Hello everyone. Today I start Julius Caesar, Act First, Scene First. Enter Flavius, Marcus, and certain commoners. First speech is of Flavius. Flavius seems here angry because commoners are walking on the street without any reason. They are celebrating something. So Flavius saying, hence means go away. Home, to your home, you idle creatures. He addressing the commoners as idle creatures. You lazy creatures, idle creatures. Why are you walking here and there? Get you home, go to your home. Is this a holiday? Do you consider this is a holiday? No, this is not a holiday. No, you not? Do you not know this is not a holiday? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Now he is indicating that all of you are mechanical, all of you are worker, all of you are laborer. So you should not walk, you ought not walk like this on a laboring day, on a working day, without the sign, without the instrument of your profession relates to your profession. Speak. Now he pulled some commoner and asked him, speak, tell me, what trade art thou? What is your trade? Art means Isarem, thou means you. So what are you? मतलब what trade of you? First commoner answered, why, well, sir, I am a carpenter. Marcus, where is the leather apron and thy rule? If you are a carpenter, so why are you walking on the street without your leather apron? Leather apron? Apron means a cloth or a uniform which a carpenter wears. And thy rule means measuring scale. Where is your measuring scale? What dost thou with thy best apparel on? Now carpenter is in best apparel, मतलब best dressing, party dress. So Marcus is asking, why are you in your party dress? You, sir, what trade are you? Now Marcus asking other commoners, what is your trade? Second commoner answered, truly, sir, in respect of a fine workman, I am what, as you would say, a cobbler. Second commoner answered, sir, in respect of fine workman, if I talk about a fine workman, as a good workman, as a good laborer, so I want to say that I am only a cobbler. जब सेकंड कॉमनर ने कहा कि मैं कॉबलर हूँ, तो मार्लोस जो है वो कॉबलर को डायरेक्टली समझ नहीं पाया कि व्हाट्स द मीन ऑफ कॉबलर. देन मार्लोस आस्क्ड, बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? इफ यू आर कॉबलर, देन प्लीज टेल मी क्लियरली व्हाट इज योर ट्रेड, व्हाट इज योर बिजनेस. आंसर मी डायरेक्टली, क्लियरली. Second commoner, a trade, sir, that I hope I may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad souls. Now, second commoner is talking in a roundabout या circumlocution language या artificial language, मतलब गोल गोल बातें कर रहा है वो. कहता है a trade, sir, my trade is, sir, what? I hope I may use with a safe conscience. I use या I do my job with safe conscience. Conscience मतलब safe way, safe intention, no cheat, no deceit in me when I do my job. And my job is, sir, a mender of bad souls. I am a mender, I am a repairer of bad souls. Souls under the shoe, मतलब shoe. अगर शूज में कोई भी रिपेयरिंग की नीड है या शू में होल हो गया है या स्टिचिंग की नीड है, तो आई एम द रिपेयरर, मैं उनको ठीक करता हूँ. मार्लोस, बट व्हाट यू डूइंग, इट्स ओके. मार्लोस नाउ नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सेकंड कॉमनर इज सेइंग. मार्लोस कहता है, व्हाट ट्रेड दाउ नीव, व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट इज योर ट्रेड, प्लीज टेल मी क्लियरली, दाउ नॉट इन नीव. You are very mischievously because you are not saying clearly what you are doing. What trade? Please tell me your trade. Second commoner, nee, I beseech you, sir, be not out with me. I beseech का मतलब होता है request. I request you, sir, not out with me, मतलब not angry with me. मुझसे नाराज मत होइए. Yet if you be out, if you will be angry with me, I can mad you. I can mad your soul.
मुझसे नाराज मत होइए, अगर आप मुझसे नाराज होंगे तो मैं आपको बिल्कुल सुधार दूंगा। और सेकंड मीनिंग, इफ यू बी आउट मीन्स इफ यू आउट एट हील्स, अगर आपके पैरों के नीचे हील्स नहीं रहते हैं, शू नहीं रहते हैं किसी भी दिक्कत की वजह से, तो आई कैन मैंड योर शूज, मैं आपके शूज के जो सोल्स हैं उनको मैंड कर सकता हूँ। Marlos, what meanest thou by that? Marlos became angry and now he is asking in angry way कि what your mean by this statement? Mend me? You want to mend me? You want to repair me? Huh? Thou saucy fellow, thou impudent fellow, impertinent fellow, insolvent fellow, uncivilized fellow. You are saying like this? Second commoner now answering. Why well? Why means well, sir, cobble you. Cobble मतलब I cobble you. Cobble you means I cobble your shoe. Flavius, oh, Flavius understood. Then he told, oh, you are a cobbler. Are you not? Second commoner, truly sir, I am a cobbler. हाँ, मैं cobbler हूँ. Cobbler मतलब मोची, जो जूते सही करता है. हाँ, मैं cobbler हूँ. All that I live by. With all I meddle, with no tradesmen's matters nor women's matters, but with all that I live, मतलब I earn my livelihood by this all. All is an instrument which is used to meddle या to pierce the leather, मतलब इस टाइप का सूजा टाइप का होता है, इसका यूज किया जाता है ताकि लेदर में छेद किया जा सके और लेदर को स्टिच किया जा सके। तो मैं अपनी लाइवलीहुड ऑल से कमाता हूँ। एंड आई मेडल मीन्स इंटरफियर या डिस्टर्ब। I don't disturb in any tradesman's matter, in any businessman's matter, not in any woman's matter. But with all, I meddle only with this all in the leather. मतलब मेरा लेना देना किसी भी बिजनेसमैन से या किसी भी वीमन के मैटर से नहीं है। मेरा लेना देना बस सिर्फ इस ऑल से, जिसका मैं यूज करता हूँ शूज को मेडल करने के लिए या शूज को पियर्स करने के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए। I am indeed sir a surgeon to old shoes. Now very comically he is saying that I am like a surgeon. I am like a surgeon to the old soles. जो पुराने जूते होते हैं उनके लिए मैं एक सर्जन की तरह हूँ। When they are in great danger, जब वो पुराने शूज बहुत खतरे में होते हैं, I recover them, I mend them. As proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. As proper man, handsome man, proper man whose dressing sense is very fine, उनको कहा गया है प्रॉपर मैन। जैसे प्रॉपर मैन ट्रॉट करता है, वॉक करता है, जब वो वॉक करता है तो वो यूज करता है नीड्स लेदर, मतलब शूज विच आर प्रिपेयर्ड ऑफ ऑक्स लेदर। ऑक्स के लेदर से बने हुए शूज को वो यूज करता है। जब वो ऑक्स के लेदर के बने हुए शू में कोई डिफेक्ट आता है, कोई होल आता है, गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क, वो सारे शूज मेरे हैंडीवर्क या मेरे हैंड के नीचे से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड कॉमनरी कहना चाह रहा है कि मेरा वर्क जो है बहुत ही स्पेसिफिक है। एज अ सर्जन मैं सारे सोल्स को ठीक करता हूँ और जो भी हैंडसम है या प्रॉपर मैन है या जो बहुत ही अच्छे शूज पहनता है, उनके शूज भी मेरे हाथों के अंदर से नीचे से गुजरते हैं, मतलब मैं उनको भी रिपेयर करता हूँ। Flavius, but wherefore art not in thy shop today? But why are you not in your shop today? Why are you walking here and there if you are a cobbler? Why dost thou lead these men about the streets? Why are you leading these men, guiding these men? या why are you supporting these men that they also be on the street? तो second commoner again comically answered, truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work. Truly sir, you are right sir, I am on the street, but there is a purpose. हाँ, मैं गली में हूँ, लेकिन यहाँ पर्पस है। मैं क्या कर रहा हूँ? wear out their shoes. I force them to wear out their shoes. wear out मतलब घिसना। मैं इन लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि ये अपने शूज को घिसें, और जितना ही अपने शूज को घिसेंगे टू गेट माई सेल्फ इनटू मोर वर्क, मुझे उतना ही ज्यादा काम मिलेगा। बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे, बट इन रियलिटी सर, दैट्स द पार्ट ऑफ जोक विच आई सेड, बट इन रियलिटी वी मेक हॉलीडे, हम यहाँ पर हॉलीडे छुट्टियां मना रहे हैं, टू सी सीजर टू रिजॉइस इन हिज ट्रिम, ताकि हम सीजर को देख सकें कि किस तरीके से सीजर विक्टोरियस होकर आया है, ताकि हम उसकी विक्ट्री को रिजॉइस कर सकें, एंटरटेन कर सकें। नाउ मार्लोस बिकेम वेरी एंग्री। ही वाज सेइंग कि ओह यू आर रिजॉइसिंग, वेयर फॉर रिजॉइसिंग, वेयर फॉर मतलब फॉर व्हाट रीजन,
किस रीजन से आप एंटरटेन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्या मतलब क्यों एंजॉय कर रहे हो सीजर की विक्ट्री को, क्यों? व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, टेल मी व्हाट कॉन्क्वेस्ट, व्हाट विक्ट्री। ये आयरॉनिक मतलब एक तरीके से स्कोल्डिंग स्पीच है, आयरॉनिक स्पीच है। मार्लोस पूछना चाह रहा है कि आप किसके विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जूलियस सीजर के भूल गए आप भूल गए पॉम्पे को, पूरी तरीके से भूल गए। इस जूलियस सीजर को याद कर रहे हैं जो पॉम्पे के अगेंस्ट सब कुछ करके आया है। तो अब मुझे बताइए व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम, ये कौन सा कॉन्क्वेस्ट या कौन सी विक्ट्री यहाँ रोम में लेकर आया है। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, ट्रिब्यूटरीज मतलब पेयर्स ऑफ ट्रिब्यूट्स मतलब प्रिजनर्स। टेल मी ये कौन से प्रिजनर्स रोम लेकर आया है, कौन से प्रिजनर्स को फॉलो करते हुए रोम आए हैं, या कौन से प्रिजनर्स हमारे रोम के लिए काफी बेनिफिशियल रहे हैं। प्रिजनर्स आप समझ रहे हो, प्रिजनर्स, ये प्रिजनर्स कौन होंगे, ये सक्सेसर ऑफ पॉम्पे होंगे। तो आपको लगता है कि सक्सेसर ऑफ पॉम्पे को यहाँ लाकर इसने बहुत बड़ा काम किया है। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स, क्या इसने कुछ ग्रेस ऐड किया है हमारे रोम में। कैप्टिव बॉन्ड्स उनके हैंड और लेग को कैप्टिव करके या उनको टाई अप करके चैरियट व्हील से, चैरियट रथ के जो बड़े बड़े पहिए होते हैं उन पहियों पर बहुत सारे प्रिजनर को टाई करके और उनको एक तरीके से प्रोसेशन का हिस्सा बनाकर, शो पीस बनाकर रोम में दिखाकर क्या क्या दिखाना चाह रहा है सीजर कि हमारा रोम अब ग्रेसफुल हो गया। उसने ग्रेस लाकर रख दिया, उसने बहुत ही बात बना दी हमारे रोम की। तो अब मार्लोस पूरे अपने रिदम में आकर कहता है यू ब्लॉक्स एंड स्टोन्स, ऑल ऑफ यू आर ब्लॉक्स डल हेडेड, ऑल ऑफ यू आर डल हेडेड, आप लोगों में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। यू स्टोन्स, आप लोगों का माइंड काम नहीं करता है। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग, जो सेंसलेस चीजें होती हैं उनसे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में है आप। ओ यू हार्ड हार्ट्स, आप लोग के हार्ट्स जो हैं वो बहुत हार्ड हो चुके हैं। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, आप जो लोग हैं कॉमनर्स जो हैं वो सब क्रूअल हैं। न्यू यू नॉट पॉम्पे, आप पॉम्पे को नहीं जानते हैं, भूल गए आप पॉम्पे को। मैनी अ टाइम एंड ऑफ, मैनी अ टाइम एंड ऑफ मतलब सेवरल टाइम्स, बहुत बार। हैव यू क्लाइम्ड अप टू द वॉल्स, आप दीवारों पर चढ़ गए थे। बैटलमैन्स, जो बैटलमैन्स थी, जो हाई टॉल बिल्डिंग्स थी वहां चढ़ गए थे। टू टावर्स, किलों पर चढ़ गए थे। विंडोज में चढ़ गए थे, या यस यस, चिमनी टॉप्स तक पर चढ़ गए थे आप लोग। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, और उस टाइम आपके छोटे छोटे बेबीज आपकी गोद में थे। देयर हैव सेट द लिव लॉन्ग डे, और वहां आप लिव लॉन्ग डे, होल डे बैठे रहे, होल डे बैठे रहते थे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन, और पेशेंटली बैठे रहते थे, धैर्य के साथ बैठे रहते थे, इस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे रहते थे टू सी ग्रेट पॉम्पे, कि आप ग्रेट पॉम्पे को देखोगे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, रोम की गलियों से गुजरते हुए। एंड व्हेन यू सॉ, और जब आप सिर्फ देखते थे हिज चैरियट, पॉम्पे के सिर्फ जब आप चैरियट को ही देखते थे, बट एपियर वो सिर्फ नजर आता था, आपके पास नहीं आया है, जैसे ही आपको नजर आता था। हैव यू नॉट मेड अ यूनिवर्सल शाउट, आप सब लोग मिलकर यूनिवर्सल शाउट नहीं करते थे। अ लॉट ऑफ चीयरिंग, अ लॉट ऑफ एप्लॉज, लार्ज शाउट नहीं करते थे ना, इतना तेज शाउट करते थे दैट टिवर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, कि टिवर रिवर जी, टिवर रिवर का नेम है, और ट्रेम्बल का मतलब शिवर्ड, कि टिवर भी शिवर्ड हो जाती थी अंडरनीथ हर बैंक्स, उसके जो किनारे थे, किनारों के नीचे जब उस किनारे पर, नदी किनारे पर खड़े हो गए आप, तो आपको शिवरिंग महसूस होगी, इतना तेज चिल्लाते थे आप कि टिवर नदी अपने किनारों पर कांपने लग जाती थी। टू हियर द रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन मतलब इको, टू हियर द इको ऑफ योर साउंड्स, ऑफ योर यूनिवर्सल साउंड्स, ऑफ योर चीयरिंग, ऑफ योर एप्लॉज, आपके चीयरिंग की, हिसिंग की आवाज को सुनकर टिवर नदी भी ट्रेम्बल्ड कर जाती थी, शिवर्ड कर जाती थी। मेड इन हर कॉन्केव शोर्स, और ये इको कहाँ होती थी, जो नदी के किनारे का जो कॉन्केव शोर है, हॉलो किनारा है वहां पर। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर वेस्ट अटायर, और देखिए अब आप अपने हालात देखिए, फिलहाल आप अपने वेस्ट अटायर पहनकर घूम रहे हैं। डू यू नाउ कल आउट अ होलीडे, आज के दिन को आप होलीडे कहकर पुकार रहे हैं। डू यू नाउ स्टीव फ्लावर्स इन हिज वे, और आप सीजर की राहों में फूल बिखेर रहे हैं। डेट कम्स अ ट्रिम्प ओवर पॉम्पीज ब्लड, आपको पता नहीं है
सीजर ने ये जो विक्ट्री गेन की है ये पॉम्पे के ब्लड पर गेन की है, पॉम्पे के सक्सेसर्स पर गेन की है। वही पॉम्पे जिसको आप गॉड की तरह पूछते थे, चढ़ जाते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, उसी के सक्सेसर पर जूलियस सीजर जो है विक्ट्री गेन कर आया है। और आपको अब बिल्कुल एशेम की फीलिंग नहीं हो रही। आप सीजर की राहों में फूल बिखेर रहे हैं। बी गॉन, गो टू योर होम, रन टू योर हाउसेज, अपने घर में जाओ, फॉल अपॉन योर नीज, घुटने के बल जाकर बैठ जाओ, प्रे टू द गॉड्स, और भगवान से प्रार्थना करो। टू इंटरमिट द प्ले, कि भगवान क्या करें, इंटरमिट कर दें, प्रिवेंट कर दें, रोक दें उस प्ले को, उस कर्स को, दैट नीड्स मस्ट नेसेसरली, जो निश्चित रूप से लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, आपकी इस अनथैंकफुलनेस पर गिरने ही वाला है। मतलब यू आर सो अनथैंकफुल दैट यू डिजर्व द कर्स ऑफ गॉड। आप इतने एहसान फरामोश हो गए कि भगवान का कर्ज तो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर आप उससे बचना है तो जाइए, घुटने के बल बैठ जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो उस कर्ज को कैसे भी करके इंट्रिम कर दे, रोक दे, इंटरमिट कर दे। फ्लेवियस, ओ गो, गुड कंट्रीमैन, गो, फॉर दिस फॉल्ट, दिस इज योर वेरी बिग मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर व्हाट यू आर डूइंग हियर। Assemble all the poor men of your sort of your types, जितने भी कॉमन लेबरर्स हैं सब लोग एक जगह जाके असेंबल हो जाइए। ड्रॉ देम टू टिवर बैंक्स, और टिवर बैंक के पास जाकर उन सबको कहाँ लीड करिए, टिवर बैंक पर चले जाइए। वीप योर टीयर्स, वहां जाकर अपने आंसू बहाइए। यहाँ पर हाइपरबोलिक स्टेटमेंट आ रहा है, आंसू बहाइए इनटू द चैनल, उस नदी का जो चैनल है, जो नैरो एरिया है, नैरो फ्लो है, वहां जाकर आंसू बहाइए। टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, तब तक आंसू बहाइए जब तक जो लोएस्ट स्ट्रीम है। डू किस द मोस्ट एक्साइटेड शोर्स ऑफ ऑल, वो लोएस्ट स्ट्रीम जो वाटर लेवल लोअर है वहां पर तब तक आंसू बहाइए जब तक कि वो वाटर लेवल किस ना कर जाए, टच ना कर जाए द मोस्ट एक्साइटेड शोर्स ऑफ ऑल, जितने भी शोर्स का सबसे एक्साइटेड जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक पानी जा सकता है, वहां तक जब तक उस रिवर का पानी ना चला जाए तब तक आप वहां पर आंसू बहाते जाइए। दिस इज योर पनिशमेंट, जाइए। एक्सिएंट मतलब एग्जिट, सारे कॉमनर्स चले जाते हैं। सी, अब फ्लेवियस कहता है मार्लस से, सी देखो, वेयर देयर बेसेस मेटल बी नॉट मूव्ड, देखो कहाँ तक ये जो बेसेस मेटल हैं, ये जो कॉमनर्स हैं, मूव्ड नहीं होते, मतलब कहाँ तक ये लोग मैट नहीं होते। देखते हैं, दे वैनिश टंग टाइट इन देयर गिल्टीनेस, देखिए सभी लोग यहाँ से निकल गए हैं और सभी गिल्टी फील कर रहे हैं और सभी लोग टंग टाइट हो गए हैं, सभी के मुंह शट अप हो गए हैं। गो यू डाउन, तुम भी जाओ, दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटोल, जो कैपिटोल है उस कैपिटोल की ओर तुम उस रास्ते जाओ। दिस वे विल आई, इस रास्ते में जाऊंगा। डिस्टर्ब द इमेजेस इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, जो इमेजेस ऑफ सीजर हैं मार्केट में स्ट्रीट्स पर लगी हुई, उन पर अगर कुछ भी डेक्ड है, कुछ भी डेकोरेशन है, गार्लैंड्स, फ्लावर्स, कुछ भी है, तो उनको आपको डिस्टर्ब करना है, उनको आपको हटाना है। और डेक्ड क्यों कर रखा होगा लोगों ने, क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं सीजर की विक्ट्री को, तो बिकॉज ऑफ सेरेमनीज अगर कुछ कुछ हो रहा है वहां पर तो उसको आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दें। मार्लोस मे बी डू सो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लुपरकल, ये लुपरकल का फीस्ट है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। फ्लेवियस, इट इज नो मैटर, कोई बात नहीं, करो। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज, नहीं चाहता मैं कि सीजर की ट्रॉफी से, सीजर की विक्ट्री से कोई भी इमेज सजी हुई हो। I will about and drive away the vulgar from the streets, मैं भी I will about, I will also set out, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, और मैं भी ड्राइव अवे करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा जितना भी वल्गर, जितना भी यूजलेस एसेसरीज सीजर के स्टेचूज पर लगा हुआ है स्ट्रीट्स में, मैं भी सबको डिस्टर्ब करूंगा। सो यू डू टू, आप भी ऐसा ही करना। वेयर यू परसीव देम थिक, जहां भी आप थिक देखें वहां आप ऐसा ही करें, आप भी ऐसा ही करना। These growing feathers plucked from Caesar's wing. Here is a metaphor. Caesar की पावर को विंग्स की तरह दिखाया गया है कि जैसे विंग्स होते हैं और विंग्स के फेदर स्लोली 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 ग्रो होते जाते हैं, तो विंग्स भी ग्रो हो जाएंगे और फिर उड़ान ऊंची होगी। तो जो सीजर के विंग्स हैं, ग्रोइंग फेदर्स, उसके जो बढ़ते हुए फेदर्स